going to share with you how I managed to secure 100% scholarship in Italian universities for my higher studies. So if you are new on the channel, then I request you to please like and subscribe this channel. And if you have already subscribed this channel, then thank you so much for subscribing this channel. So in this video, I'm gonna tell you a lot of things, just like how I secure 100% fully scholarship in Italy, and I will also share with you the important tips to get the fully funded scholarship. और मैं आपसे अपना थोड़ा सा experience share करूँगी कि मैंने क्या क्या काम किया था, and 3 important steps to get the fully funded scholarship. So इस वीडियो को end तक जरूर देखिएगा. Let's dive into this video. For a lot of people to get the 100% fully scholarship is just like a daunting experience, but with the right mindset and with the right approach. So पहले मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ how I got 100% fully scholarship. I have applied in a lot of universities and for a lot of scholarship. मैंने बहुत सारी research की थी. I have made a lot of list of the universities and what documents do I need, because each university and each scholarship has different documents and different requirements and priorities. So मैंने बहुत सारी universities में apply किया, बहुत सारे scholarships के लिए apply किया, and स्टार्ट में मुझे इतना आइडिया नहीं था हाउ टू अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप, हाउ टू अप्लाई फॉर द यूनिवर्सिटीज, एंड आई गॉट अ लॉट ऑफ रिजेक्शंस, and I spent a lot of time in screaming, in yelling, and in crying, and it's just like hitting the head against the wall. And my mother, she was just like, Huma, persistence and determination is the key. If you are applying, keep applying, keep applying, keep applying. Don't lose hope, don't give up. And my hard work, my determination and my persistence paid off at the end. क्योंकि मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी थी. I didn't give up. मुझे ये था कि no हुमा, your next step जो होगा वो तुम्हारा यूरोप में होना है, because now you are applying. तो रिजेक्शन आ रही है, 1 दफा आएगी, 2 दफा आएगी, 10 दफा आएगी, 20 दफा आएगी, 50 टाइम्स आएगी, 100 टाइम्स आएगी, but keep applying, keep applying. तो मैं अप्लाई करती गई, and I remember my boss words के जिन्होंने कहा था कि हुमा, determination is the key, persistence is the key, keep applying. So it was just like I pulled my socks up and I was like, okay mom, you said these words, and मैंने यहाँ पे उस words को रख लिया और मैं अप्लाई करती गई. At the end I got 100% fully scholarship in Italy और मैं इटली पहुँच गई. And that time was like कि यार मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे my feet are in the air and I was just flying, और मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरे dreams है, all the dreams they came true. तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी. तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इसलिए ये शेयर कर रही हूँ कि बिकॉज आई गॉट हंड्रेड्स ऑफ रिजेक्शंस. तो मैं हिम्मत नहीं हारी थी. मेरा एम क्या है कि आपने हिम्मत नहीं हारनी. आप क्या चीज़ हो, सबसे इम्पोर्टेंट आप अपने लिए हो है. फर्स्ट थिंग आपने क्या करना है, आपने अपने आप से मोहब्बत करनी है. आई रिमेम्बर अभी मैं हाले लास्ट वीक I got gazillion questions from the students second last week, but I remember a question from a student and he said कि मैम आपको एक वीडियो बनानी चाहिए. You should also share your experience with all the students कि how did you secure all the scholarship. मैम क्या कभी ऐसा हुआ है कि did you get the rejection. तो मैंने उसे बताया बच्चे, rejection is a normal thing, it's a very natural thing. तो आपने क्या करना है, जैसा मैंने अभी बोला कि यू शुड लव योर सेल्फ. आप जो हो वो आप अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, आप अपनी फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो. जब आप अपने से मोहब्बत करना सीखोगे आपको पता चल जाएगा कि आप अपने लिए क्या क्या कुछ कर सकते हो. सो अभी मैं आपको बताती हूँ कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट टिप्स टू सिक्योर द स्कॉलरशिप. द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज रिसर्च. आपने रिसर्च करनी है. अगर आप रिसर्च नहीं करोगे, ठीक है, आपको एक स्कॉलरशिप मिला, आपने बस उसके लिए अप्लाई कर दिया, आपको नहीं पता कि उसके लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, एंड हाउ टू राइट द मोटिवेशनल लेटर, व्हाट काइंड ऑफ सीवी डू दे वांट. अगर यूरोप में है तो ऑब्वियसली यूरोपियन सीवी दे वांट, यूरोपियन सीवी. इफ यू आर अप्लाइंग इन अमेरिकन यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी, तो आपका जो है वो सीवी कैसे होनी चाहिए, वहाँ पे ऐसे जो राइट करना है वो ऐसे कैसे होना चाहिए. सो द फर्स्ट स्टेप इज रिसर्च. रिसर्च करते जाए. आई नो रिसर्च इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग बिकॉज यू हैव टू dive into the website, you have to dive into everything के हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे करना चाहिए. I know you can cry, you can scream just like me, and sometime I know most of the students, very normal for all the students, they wanna hit their and bump their head against the wall कि यार ये क्या चीज़ है, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ और मैंने ये सारा कुछ किया. बट जो मिस्टेक होती है वो रिसर्च की मिस्टेक होती है कि आप प्रॉपरली रिसर्च नहीं करते हो और आप बस अप्लाई करते जाते हो. तो इम्पोर्टेंट की इज रिसर्च. जब आपकी रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद प्रिपरेशन फॉर एप्लीकेशन. आपने एप्लीकेशन के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना है.
एप्लीकेशन देखनी है, एप्लीकेशन को बार बार रीड करना है। ऐसे नहीं करना एप्लीकेशन आपके सामने आई और आप जी फिल करने चले गए और सबमिट करवा दिया। आफ्टर द सबमिशन देन यू विल रियलाइज कि यार मैंने तो ये मिस्टेक कर दी है। तो कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती है कि जो आप एडिट नहीं कर सकते, तो ये आपने एप्लीकेशन को बार बार रीड करना है। अपने पास पेपर रखे एक, उसके ऊपर एप्लीकेशंस के पॉइंट्स लिखे कि यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पूछे जा रहे हैं और उन्हें मैंने कैसे फिल करना है। थर्ड चीज क्या है, आपने एप्लीकेशन को फिल करना है। कॉपी है, पेपर रखे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे कि यहाँ पे ये पॉइंट है, उसका आंसर मैंने कैसे करना है, यहाँ पे ये पॉइंट है, उसका आंसर मैंने कैसे करना है और किस किस तरीके से मैंने आंसर करना है। अगर वहां पे 4 पॉइंट्स मेंशन करने हैं तो फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखना है, सेकंड पॉइंट मैंने क्या लिखना है, ये चीज भी इंपॉर्टेंस रखती है। So these are the 3 steps that I followed and I got, alhamdulillah, I got 100% fully scholarship from the Italian government. First is research, second is preparation for the application, and the third one is submit the application, how to submit the application. So now I tell you 3 or 4 important tips to get the 100% fully scholarship. उसके अंदर कुछ points हैं जो मैं आप लोगों के साथ share करूंगी. The most important thing is start early. एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ओपन होते हैं, सपोज एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ओपन हुआ 1 नवंबर को, डेडलाइन इज 30 दिसंबर। सो आप कहेंगे कि जी मेरे पास 2 मंथ्स का टाइम है, मैं आराम से कर सकता हूँ जी। आप अपने काम में लगे हुए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, आप खेलने में चले गए कि जी आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप, टू अप्लाई फॉर एडमिशन, सो आई कैन अप्लाई एट द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर। तो नहीं, ऐसा नहीं करना। आपने क्या करना है, आपने स्टार्ट में अप्लाई करना है, जल्दी अप्लाई करना है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली चीज होती है कि आप पहले आएंगे, उनके पास एक स्पेसिफिक सीट्स होती है, 30 सीट्स हो गई हैं, वो डेडलाइन का वेट नहीं करती यूनिवर्सिटी। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो डेडलाइन का वेट नहीं कर रही होती, उनके पास एप्लीकेशन आती है, एप्लीकेशन को लाइन अप करते रहते हैं, साथ साथ उनका जो सिस्टम है AI जो है वो उनकी एप्लीकेशन को रीड करता रहता है और जो एप्लीकेशन रिजेक्ट करनी होती है साथ साथ उन्हें रिजेक्शन जारी होती है और जो उन्होंने एक्सेप्ट करने होते हैं उन्हें साथ साथ वो एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो सेंड करते रहते हैं। और यहाँ पे मैं एक चीज और ऐड करती हूँ कि आपने चीज को ऐसे नहीं लेना कि ठीक है यार एडमिशन स्टार्ट हो गया तो नाउ आई हैव टू सबमिट माय एप्लीकेशन। जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले पॉइंट्स बताए हैं कि हाउ सिक्योर 100% फुली स्कॉलरशिप, किस तरीके से मैंने सिक्योर किया था, रिसर्च की थी, प्रिपरेशन फॉर द एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, एवरीथिंग। सो आपने उन स्टेप्स को जरूर फॉलो करना है। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो ये है कि स्टे ऑर्गेनाइज्ड। आपने ऑर्गेनाइज रहना है, आपने एक लिस्ट बना लेनी, चाहे वो एक्सेल की लिस्ट हो, चाहे कॉपी पेंसिल के साथ आपने बनानी है, कुछ भी है आपने उसमें मेंशन करना है। यूनिवर्सिटी का नेम मेंशन कर दिया, कंट्री नेम मेंशन कर दिया, उसके अलावा आपने एप्लीकेशन कब ओपन हुई है आपने उसका कॉलम बना लिया, डेडलाइन क्या है और वहां पे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक चीज बोली कि डोंट मूव अराउंड, डोंट वॉक अराउंड, डोंट अप्लाई जस्ट लाइक हेडलेस चिकन। तो आपके पास प्रॉपर एक नॉलेज होना चाहिए। यू शुड बी कॉन्फिडेंट कि आई हैव इनफ नॉलेज टू अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप। और जो मेरे पास इनफ नॉलेज है वो आपका अपना इनफ नॉलेज नहीं है, आपके पास वो नॉलेज इतना होना चाहिए कि ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मेंशन है। तो स्टे ऑर्गेनाइज्ड। लास्ट थिंग जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो ये है कि राइट अ स्ट्रॉन्ग एसे एंड मोटिवेशनल लेटर। कुछ यूनिवर्सिटीज जो हैं वो ऐसे रिक्वायर करती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज में मोटिवेशनल लेटर और स्टेटमेंट और पर्पस होता है। तो ऑलवेज राइट वेरी स्ट्रॉन्ग एसे एंड मोटिवेशनल लेटर, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में जो मेन पॉइंट होता है वो क्या होता है कि वो आपका ऐसे रीड करती है और उस बेस पे आपको एडमिशन दिया जाता है। अगर आपका ऐसे है इट इज स्ट्रॉन्ग इनफ तो वो आपको एडमिशन दे देते हैं। तो अपने ऐसे पे आप एटलीस्ट 1 to 2 वीक्स जरूर लगाएं, आप उसमें पॉइंट्स लिखें, पॉइंट्स नोट करें, क्योंकि आप जो है वो सिर्फ आप हो, कोई और बंदा नहीं है। तो आपने जो है वो स्ट्रॉन्ग ऐसे लिखना है। अगर आपको किसी भी चीज में कोई कंफ्यूजन होती है, ऐसे लिखने में कोई कंफ्यूजन होती है, पॉइंट्स नोट करने में कोई कंफ्यूजन होती है, किसी भी चीज में रिसर्च में कोई कंफ्यूजन होती है, सो वी आर हियर टू to provide you all the information and to give you all the suggestions एंड जिसकी बेस पे आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं, जिसकी बेस पे आपका एडमिशन हो सकता है, जिसकी बेस पे आप आगे जा सकते हैं फॉर हायर स्टडीज। तो अगर आपको किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो इन दिस वीडियो मैंने आपको ये सारा बताया है। मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि हाउ आई गॉट 100% स्कॉलरशिप आफ्टर गेटिंग हंड्रेड्स ऑफ रिजेक्शंस। So rejection is very normal and crying, screaming, yelling, all these things are very normal. और तो आपने क्या करना है, सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने इस वीडियो में बताए हैं कि टिप्स कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, उन टिप्स को फॉलो करना है, स्टेप्स को फॉलो करना है। तो इस तरीके से आप 100% स्कॉलरशिप ले सकते हैं। सो आई होप आपको सारी चीजों की समझ आ गई है। अगर आपको सारी चीजों की समझ आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टे इन टच, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका एडमिशन कैसा हो रहा है, आपको कोई कहीं से एक्सेप्टेंस आई कि नहीं आई, आर यू अप्लाइंग फॉर द स्कॉलरशिप और नॉट। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।